Good afternoon, friends. As we know, the election season is on, and came to our notice with respect to the election management is a complete mismanagement which is going on in this state. So far as Delhi is concerned, the office of the Chief Election Commissioner is for one basic task, and to ensure that there is a fairness in the democratic process, and each side, whether it's government or it's the opposition, gets a fair chance to achieve its objective in a fair manner. But what has come to our notice is that there is model code of conduct not only for the candidates but for the government of the day also, the parties also which are contesting the election. So far as the government is concerned, the government has acted in a most malicious manner, has acted in a most illegitimate manner. There was a list of 19 SHOs which were required to be transferred under the model code of conduct because 19 SHOs had completed their tenure of more than 3 years. And because they had completed their tenure and they continued with their services in the same seat, they were required to be transferred. But under the garb of transferring these 19 officers, which were mandated by the law, by the election laws and the model code of conduct, the government of the day, which happens to be run in the name of UPA basically by the Congress party, most ministers are from the Congress party, have transferred 40 SHOs. And why I am pointing this out, that this was an unfair, illegitimate practice by the government because it sought to achieve the same object which was against the law. The object was to have fair elections, but they are trying to achieve the same by manipulating the outcome and having these SHOs transferred under the garb of other transfers. And what we are faced with at a practical level, the hoardings which have Mr. Modi as our campaign star and Mr. Vijay Goyal as the president of the Delhi BJP, these hoardings, banners which are existing on the approved sites, have been removed. And we spend a lot of money in putting these sites by hiring these sites and also getting printing and all these things done, apart from the fact that it calls for damages from the government because these are approved sites, they are damaging our property and they are harming our campaign. So these sites, can give you a list of those sites, and I would request all of you to go to those sites, visit those sites and see how this property is being damaged and how these posters are being pulled out, removed, and these hoardings are getting removed and damaged. And in this process, there are wall panels, wall wraps, there are many things, flagpoles, etc., which are allotted advertising sites, and we have paid for these sites. And when we have paid for these sites, the notice is not being taken off by the election commissioner and recording is being made and yet no action is being taken. Plus, we have objected to it. We have gone to the election commissioner's office and we have requested the election commissioner to look into it and allow our posters, banners, hoardings which are on authorized sites. Now, what is banned is defacement, that I cannot deface a public property. But on an approved MCD site where I have paid the charges and I have invested in running my campaign, I cannot be stopped. And under the garb of Defacement Act, virtually they are stopping us from running our campaign. And our workers who are working at the ground level are being harassed by the police constantly. They are being taken to the thanas. They are kept there for 4-5 hours. One person who was just moving in his state, as of now, nomination time has not come. Nobody has filed the nomination papers.
The selection of candidate is not complete. So each one is doing their own job of making himself or herself visible. These people were arrested and booked under 188. You are actually an uncalled form of emergency is what is running in the state of Delhi right now, and this is to manipulate the outcome of the election and electoral process. It is in this context the transfer of the SHOs need to be taken up immediately, and if election commissioner does not take this action immediately and does not show immediacy, we will go to the court. And collusion between Delhi police, election officers and the Delhi government, including the central government, is writ large on its face. And election commission, being an independent institution, not only be an independent institution in the books, but should act like an independent institution. And through the medium of media, we want to raise this issue. We want to bring this issue to the notice of the Chief Electoral Commissioner, CEO, Mr. Vijay Dev, to initiate proceedings immediately. Otherwise, we will be left with no choice but to approach the court. Any questions that my friends may have, or you would want me to... मैं बोलती मित्रों, चुनाव का माहौल है और आज जो दिल्ली प्रदेश की जिम्मेवारी मुझे मिली है, उसी जिम्मेवारी के तहत जो सबसे पहला विषय हम लोगों के सामने आया है, वो विषय है कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनको ज़मीन पर जो काम कर रहे हैं बहुत ही ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है, गैर कानूनी सलूक उनके साथ हो रहा है, उनको थानों में 4-4, 5-5 घंटे बिठाया जा रहा है और लगातार किसी न किसी तरीके से पुलिस उनको तंग कर रही है। और उस तंग करने के जो कारण हैं, MCD की अप्रूव्ड साइट्स हैं जहां पर हमने पैसा खर्च किया है, उनको हमने लिया है और उसी के माध्यम से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहते हैं। आज मोदी फोबिया में दिल्ली सरकार इस बुरी तरीके से ग्रस्त है कि उनकी तस्वीर और पोस्टर जहां कहीं भी दिखाई दे रहे हैं, जो पोस्टर्स लगाए हैं वो श्री नरेंद्र मोदी और श्री विजय गोयल जी के लगे हुए हैं और दोनों एक इलेक्शन कैंपेन हेड कर रहे हैं, दूसरा दिल्ली के अध्यक्ष हैं। और क्योंकि पार्टी दिल्ली में इलेक्शन मोड में है, उसके तहत इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। इसका जो बही खाता है वो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, CEO इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं, उनको हमने दिया है और उनसे मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके से तंग और हैरेस दिल्ली पुलिस ना करे। लेकिन एक विषय अभी हमारे सामने आया है और उस विषय के माध्यम से वो हम आपके द्वारा उसको उठाना चाहते हैं और अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। वो विषय ये है कि आज दिल्ली में एक पुलिस राज्य के माध्यम से काम हो रहा है, उसकी तरीके से काम हो रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे अघोषित आपातकाल दिल्ली में लगा दिया गया हो, खास तौर पे विपक्षी पार्टियों के ऊपर। जब 19 SHO ऐसे थे जो ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, जिनका ट्रांसफ़र ड्यू था क्योंकि उनको 3 वर्ष से अधिक समय अपनी कुर्सी पर हो गया था, तो कायदे और कानून के तहत उनका ट्रांसफ़र वाजिब था। लेकिन इस सरकार ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 19 नहीं बल्कि 40 SHOs को ट्रांसफ़र किया और उन 40 SHO को इस तरीके से ट्रांसफ़र किया कि ऐसा लगता है कि पूरा चुनाव वो दिल्ली पुलिस की सहायता से ही लड़ना चाहते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो हमें बहुत खेद होगा कि इलेक्शन कमीशन भी इसी सरकार की मदद करने में लगा हुआ है। सरकारी तंत्र के तहत जो सरकारी संस्थान होते हैं, उनमें लोकतांत्रिक भाव को जीवित रखने के लिए उनकी अपनी अपनी स्वाधीनता भी होती है कार्यशैली की, और उस स्वाधीनता के तहत चीफ इलेक्शन CEO इलेक्टोरल ऑफिसर
और अगर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कार्रवाई नहीं करेंगे तो लगेगा कि वो कांग्रेस पार्टी के ही दस्ते हैं, जो कि मान्यता कानून के तहत और लोकतांत्रिक माध्यमों के तहत नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब का खामियाजा जो है टैक्स पेइंग कम्युनिटी और भारत के जो नागरिक हैं उनको भरना पड़ेगा। और इसी के रहते हम ये चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमें मजबूरन इस मामले को कचहरी में उठाना पड़ेगा। लेकिन हम ये विषय ज़रूर उठाना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। और अब जो 40 SHO वाला विषय है वो भी मैं CEO के दफ्तर लेके हम लोग पहुंच रहे हैं। मीनाक्षी जी, साफ शब्दों में अगर एक लकीर पूछना चाहें आप, तो मोदी फोबिया से इस दिल्ली में ग्रसित कौन कौन है, साफ शब्दों में बताइए। देखिए, मोदी फोबिया से तो तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग ग्रसित हैं। मैं किस किस का नाम लूं, वो पूरा सुबह से शाम निकल जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल मोदी फोबिया से ग्रसित है, और उसका जो उदाहरण है वो इसमें नज़र आता है कि आज पोस्टर और जो होर्डिंग और बैनर्स लगे हुए हैं उनको ही फाड़ने में लग गए हैं। नहीं, चुनाव आयोग को मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन सरकार अपने जो गैर कानूनी तौर तरीके हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सभी के लिए है, और उसमें सरकार भी शामिल होती है। और इसमें जो लगता है वो ये लगता है कि सरकार मॉडल है ही नहीं, और इसी करके वो अनमॉडल लाइक बातें कर रही है, और वो ऐसी बातें कर रही है जो कि किसी भी संस्थान के लिए शोभा नहीं देती। चुनाव आयोग पर मेरा इल्ज़ाम यही है कि ये सब चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव, अब मैं इसको जोड़ना चाहती हूँ कल के विषय से। आपने मध्य प्रदेश में देखा, लेकिन किसी ने ये बात नहीं उठाई कि जब लगातार विषय उठ रहा है तो वहाँ पर इस समय कायदे से जितना शासन है वो शिफ्ट हो गया है इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में। अब जब इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में शिफ्ट हो गया तो जितने ट्रांसफर्स हैं, जितने काम करने हैं, किसको रखना है, किसको हटाना है, जो डे टू डे मैनेजमेंट है वो कायदे से सीएम के हाथ में नहीं रहता, और सीएम को नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर सीएम को नहीं करना चाहिए वहाँ ये 40 ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जहाँ करना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए, वहाँ अपने आप को दूर नहीं रख रहे। और इलेक्शन ऑफिसर्स, उनकी आंखों के नीचे अगर हो रहा है, अगर वहाँ होर्डिंग फाड़े जा रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर को ये मालूम नहीं? और नहीं मालूम तो क्यों नहीं मालूम, इसका वो पता लगाएं और इस पर तुरंत कार्रवाई करें। और जो दिल्ली पुलिस के लोग इस पर अनुशासित तरीके से नहीं काम कर रहे और शासन तरीके भंग कर रहे हैं शासन को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये जो सीईओ हैं उनका कार्यक्षेत्र है कि वो उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अपने क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर नेक्सस करके भाई अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमको ये इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी उनसे एक्शन की मांग कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और वो इस पर तुरंत एक्शन लें, तुरंत कार्रवाई करें। और अभी जो है शायद एक मसले का तो हमें वो आ गया है अभी उनकी तरफ से क्लैरिटी कि जो हमारे पोस्टर्स, होर्डिंग्स पेड साइट्स पे लगे हुए हैं उसको दिल्ली पुलिस को हटाने की अनुमति नहीं है। ऐसी क्लैरिफिकेशन उनके यहाँ से आ चुकी है। तो इसलिए अब मैं दूसरा जो विषय है उनके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, और वो उनके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि ये तब तक हालात दुरुस्त नहीं होंगे जब तक वो 40 SHOs के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जिनको ज़बरदस्ती उनका ट्रांसफ़र किया गया है। मैडम, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने ट्रांसफर किया और उठाया, तो क्योंकि आपने आज ये विषय उठाया, इसके पहले आपने मध्य प्रदेश को आपने कहा नहीं, मैंने ये विषय कल, आप सुनिए मेरी बात भाई साहब, आप मेरी बात मेरे को पूरी करने दीजिए। ये कल का विषय है। कल हमारे यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और की थी, जो उनका विषय था उन्होंने वो विषय उठाया। ये विषय मैंने कल उठाया है। वो बाइट आपने नहीं सुनी होगी, प्रेस में प्रिंट में नहीं गई होगी, पर इस पे मेरी बाइट चली है। इस पे ये मैंने कल कहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है, एग्जाम्पल दिया है।
Ma'am, I can't speak on anybody else's behalf. BJP workers are being harassed, so I'm speaking on behalf of my party. And I can only say that my party workers are being harassed and they are being kept in the police station. 188 proceedings are being carried out against some of them, and my posters are being torn, and not by the people from opposite camp, but within 1 or 2 hours by the police. कल प्रशांत भूषण अपनी पार्टी की तरफ से इसी तरह के क्लेम को लेकर चुनाव आयोग के पास गए थे। तो उनकी पार्टी के लोगों को हरास किया जा रहा है, टोपी तक नहीं लगाने दी जा रही है, यहाँ तक कि प्रचार के सारे माध्यम बंद कर दिए गए हैं। आज आप मीडिया के फोरम पर इस बात को चुनाव आयोग के खिलाफ उठा रही है। आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो है उसकी स्वाधीनता पर नहीं तमाम पार्टियां सवाल उठा रही हैं? मैं चुनाव आयोग की स्वाधीनता पर प्रश्न नहीं लगा रही, मैं एक शक जाहिर कर रही हूँ। और चुनाव आयोग अगर वाकई स्वतंत्र है और स्वतंत्रता से काम करना चाहता है, तो मैं इनको बता रही हूँ कि इन मुद्दों पर आपकी कार्रवाई की अनिवार्यता है, आप इस पर कार्रवाई करें। अगर उस पर अनिवार्यता पर काम नहीं होता, उसके बाद मैं दूसरे पक्ष पर आऊँगी कि वो स्वतंत्र है या नहीं, वो मैं उसके बाद बयान दूँगी। आपने कहा 4-4, 5-5 घंटे बिठा के रखा जाता है थानों में, तो क्या बोला जाता है उनको, क्या धमकी दी जाती है? उनको धमकी यही दी जा रही है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप सड़क पर चल नहीं सकते, आपने माला क्यों पहनी है, आप ये पोस्टर लगा नहीं सकते। वो कागज़ दिखाते कि भाई ये एमसीडी की पेड साइट है, मेरे पास ये सारे कागज़ पड़े हैं और मैं वो रिलीज़ कर रही हूँ आप लोगों को। आप सब जाइए इन सब जगहों पर, देखिए कश्मीरी गेट, ग्रेटर कैलाश, आरके पुरम, ऐसी तमाम साइट्स हैं जहां ये लगाए हुए थे ये होर्डिंग्स, इन सबको फड़वाया गया है और फड़वाने वाला कोई और नहीं, पुलिस वाले हैं। तो कारण कहीं ना कहीं पोस्टर या होर्डिंग है, कोई अन्य कारण तो नहीं वहां पर बिठा के रखने का? भाई साहब, इलेक्शन के बीच में तो कारण यही है ना, और क्या कारण होगा? कहीं ना कहीं ये धमकी तो नहीं दी जा रही कि आप लोग नहीं, वो तो देखिए इनडायरेक्ट तरीका तो यही है ना कि अगर आप एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को उठा के थाने में बिठा देंगे 5 घंटे के लिए, अगले दिन उसकी बीवी ने कहना है आप रहने दीजिए, आप कैंपेन पे मत जाइए। सीधी बात है, 5 घंटे थाने बैठने के लिए नहीं है ना। अच्छा, अगर मेरे ही क्षेत्र में ऐसा होगा, मैं तो उतने मेरे कम पोस्टर्स लगेंगे ना, उतना कम काम होगा, तो उसका जो सीधा खामियाजा है वो तो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए ये कानूनी के तौर पर ये डैमेजेस का केस बनता है कि आपने एक तो प्रॉपर्टी डैमेज की, दूसरा किसी का समय खराब किया, तीसरा जो कैंपेन होनी चाहिए थी उसमें अड़चन डाली। तो आदमी ये सब करेगा कि कैंपेन करेगा? काम कब करेगा? और कैंपेन का काम बहुत लंबा चौड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि आप बैठे और कैंपेन हो गई। तो इसीलिए ये मैं आप लोगों के माध्यम से जो दिल्ली को एक पुलिस स्टेट बनाने की कार्रवाई हो रही है, मैं वही आपके सामने ला रही हूँ। सिर्फ शीला दीक्षित इसमें शामिल नहीं है, जो इनके घोटालों में लोग शामिल हैं, और शीला दीक्षित भी उनमें से एक है, वो तमाम लोग शामिल हैं जी, जिसमें केंद्रीय सरकार भी शामिल है। You see, everyone becomes a party, from Home Ministry to Election Commission to Delhi Commissioner and the Chief Minister of Delhi. Everyone becomes a party if the matter goes to the court. Are you giving a time limit? No, we are going to meet him immediately after the press conference. I'm going to seek an appointment from his office, and I'm going to, in the meantime, draft my letter and go to him immediately. But we want to release it to the press first, go to him, and then we see what action is being taken. Any more questions, please? मैडम, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को 188 में बुक किया जा रहा था, अभी तक कितने कार्यकर्ताओं पे यानी ये 7-8 लोगों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई हुई है, और वो उसका ब्यौरा भी हमने जो है CEO को दिया है। रूपनगर थाना उनका ब्यौरा हमने दिया है। Thank you. धन्यवाद, थैंक यू।